आज्ञा से और गुरुजी के कारण से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ. So actually, what is numerology? I think everybody knows what is numerology. It is nothing but related to numbers. How did numerology start? This, I think from ages, everybody is telling numerology, numerology. But है क्या numerology? Numerology is study of numbers. Everything is study of numbers. It started in I think numerology is exactly कोई एक perfect. There's no perfect date telling that numerology started in this date. But yes, 2000 years before 1907, a person called Pythagorean has named it as a numerology of Pythagorean at 1907. But before that, 200 BC, that is 500 BC, numerology was there. So now what is numerology? Numerology is nothing but study of numbers, study of your names. Name also has, we have 26, vowels and consonants. So 26, when there is a character, every name or every vowels, consonant have its own numbers. Every person is born at a particular date. Now, when we say everybody, it is like in 1 minute we have 100 people born together throughout the global. Why is not that 100 people having the uh, same kind of life, career, future? Why is it different then? So if you see, numbers is related to person directly, indirectly. Everybody, every name or every person is born on a particular date. We agree? There is a date, there is a time, there is a place. Now, place also matters over here because latitude, longitude also is counted through in numerology. So there is a vibration between your name and the number. The name is again related to the numbers or complete universe. There is a vibration and harmony connected to your name. So if you see a person's born, 100 people born on the same time, everybody's name are different. Their vibration are different, and the faith is different. Their karmas are different. Career is different. Their disease are different. The value of life is different. So here we realize where we can make ourselves strong, where we can, what is the weakness and what is the strength. How do we know? Now there are so many kind of occult signs. There are 50 kinds that Guruji is teaching also. So everything is again related to numbers, directly, indirectly. You have your telephone numbers. Again, it is related to your vibrations. The people who are contacting you is through your numbers. So by your telephone number only, I think we can predict a lot of things. So your nature, your career, your faith, your karma, your disease, everything can be rectified. So in this class, you will learn a lot of magical things which you have never ever thought of it. You can rectify yourself. You can rectify your chakras. How do you know now? Why am I not rich? I am earning so much, but I'm not rich in my happiness. I have so much knowledge, but I'm not able to reach that kind of, name and fame. क्यों? कुछ तो कारण है कहाँ if and but miss हो रहा है. So in numerology, you can learn your past karmas, why, and you can rectify your past karmas now and make a happy life. One life we know, we really don't know who is future, what is back. बोलते हैं कर्मा है, ये है, वो है. But अगर हम लोग ये rectify, we can do the rectification is, you can do it over here. So in numerology, there are three kinds of numerology. As per today, we call it as Pythagorean numerology, Hebrew numerology, and numerology. These are the three kinds of numerology. It is used in different purpose. Now we are going to study total and purest, the advanced numerology, which is called as a Pythagorean numerology. What all we can do? There are different stages of life, and you have different period running across. Every day is different. Every day is new. So numerology can tell you now. It is like a plan.
You can know now tomorrow this is what is going to happen. Let me rectify this now. Let me strengthen my number. Use that number. Use the vibration. So I would like to tell you that in today's class, we will also learn in our class, which is going to come a further end, we are going to learn when is your marriage, which date you can join a job, then what kind of karma or diseases are you facing? Why are you not reaching your target? What is that you can improve your life? So these are the things you can learn in this class. And I expect most of you over here who has a lot of doubts in yourself, please clarify your doubts before joining the class so that you know what you're expecting. Are you going to get this in the class or no? So I'm completing this by telling that numerology is wonderful thing, and I have sorry, I've not given my introduction a bit. From 2 decades, I am a trainer, soft skill trainer, from language trainer. I do a lot of soft skill, life skill, and communication is my main core area where I do training. And counseling I'm doing in counseling, astro numerology by Guruji's support. I am doing counseling. So these are the tools, and I'm an expert of NLP, Neuro Linguistic Program. So when I'm doing my counseling, I take the support of numerology to understand the person. So I expect I have given a little bit of introduction of numerology, and I would like if anybody has any kind of doubt can ask me right away. And before I give it to Ankit ji to take over, any doubts over here? I think I was a little bit fast. Any doubts? हाँ हिंदी में अभी अंकित जी बोलेंगे. देखिए मैम. हाँ जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है. मैंने एक्चुअली सर से पहले 2-3 न्यूमरोलॉजी के कोर्स किए हुए हैं. मैंने लोशो ग्रिड किया हुआ है सर के साथ, वैदिक किया है और मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है. तो अभी नाउ आप बोल रहे हैं कि पाइथागोरन के थ्रू करेंगे, तो मतलब इस जो नया स्टाइल होगा, मतलब जो पाइथागोरन है, इसमें कुछ अलग है उससे, या जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं? क्योंकि उसमें भी काफी कुछ, सर तो काफी वैसे भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है सर का, तो वो काफी सारा नॉलेज उसमें दे देते हैं. तो क्या इसमें कुछ उससे डिफरेंट होगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं? डिफरेंट है प्रमोद जी. एकदम डिफरेंट है. इसमें यू गेट द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. मतलब ये क्लास एकदम हटके बना हुआ है. एंड आई थिंक अ लिटिल बिट मच बेटर इज, अभी थोड़ा 1-2 एग्जांपल भी गुरुजी कर देंगे आपको. यू नो you'll know the instant answer of your questions. आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी. एंड वी आर गोइंग टू होरारी भी है इसमें. इट विल बी रिलेटेड टू योर मेडिकल ऑल्सो. इट विल बी रिलेटेड टू योर अगेन केपी. सो ये थोड़ा हटके कोर्स है जो अभी इंडिया में कोई कराए नहीं है अभी तक. In India till today, the kind of course is going to go over here. ओके, अच्छा. क्योंकि मैंने सर वो हिब्रू भी किया आपके साथ में वो, और उससे पहले वैदिक किया था, मोबाइल किया था, तो उसका तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है. मतलब आपने जितना बताया था तो मैच करता है, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% that matches with the conditions. Yes. I really agree with that. Yes. Yeah. So I would like to tell everybody thank you for this, and I would tell अंकित जी आप हिंदी में इंट्रोडक्शन दीजिए. आपका इंट्रोडक्शन देके आप प्लीज हिंदी में कंटिन्यू करें. ओके, थैंक्स. थैंक यू ऑल. प्रणाम गुरुजी. थैंक यू मैम. बोलिए अंकित जी. अंकित जी आप हैं? बिल्कुल. क्लास में आए सभी मेंबर्स का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. देखिए, आप सभी ने आज आपके बीच बहुत सारी न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें से सबसे जो विख्यात है, जो सबसे फेमस है, वो है लोशो ग्रिड. और आज मैं ये समझता हूँ कि आपको नंबर्स के बारे में जो जानकारी है वो बहुत हद तक हो चुकी है. सभी को पता है कि 0 से लेकर 9 तक कोई ना कोई नंबर होता है, उसका कोई ना कोई प्लेनेट होता है, और उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपकी लाइफ में इवेंट को बताने में या कुछ ना कुछ वो बताती हैं, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट करती हैं.
तो हमारा ये जो कोर्स है वो बाकी कोर्सेज से थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि मार्केट में आप जो लुशो ग्रेट है या जो न्यूमरोलॉजी है वो आज बहुत बेसिक हो गया है, उसके बारे में सबको कॉमन जानकारी सबको पता है। इसलिए जो डिफरेंट कोर्सेज है जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, इसमें हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे जो हमारी खुद की रिसर्च बेस्ड थी। साथ ही साथ इस कोर्स में जैसा कि आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी की 5 शाखाएं होती हैं, मतलब 4 से 5 टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है जो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में चलती है। जैसे लूशो चलती है, वैदिक चलती है, पाइथागोरियन चलती है, वैदिक चलती है, कव्वाला चलती है, हिब्रू चलती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम चलते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी सिस्टम जो है वो अपने आप में पूर्ण है। ये सब सिस्टम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि यदि आप नेम न्यूमरोलॉजी का यूज कर रहे हैं, खासकर इंग्लिश न्यूमरोलॉजी का, तो वो आपके लिए लूसो से अच्छा कोई है ही नहीं। आप लूसो के लिए उसका यूज करते हैं हमेशा, नेम न्यूमरोलॉजी के लिए। वहीं आप यदि हिंदी वर्ड से अपने नेम की करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए कव्वाला न्यूमरोलॉजी से अच्छा कोई मेथड है ही नहीं। तो ये जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं जो भी 5 मेथड हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, वो अपने आप में अपूर्ण है, और अपने आप में अपूर्ण भी हैं और पूर्ण भी हैं। लेकिन जब इन्हीं 5 सिस्टम को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसके हमें वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं, और हमारी ये जो जर्नी है न्यूमरोलॉजी की वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो कोर्सेज है, इस कोर्सेज में हमने इन्हीं 5 मेथड्स का ऐड किया हुआ है, इनको कॉम्बो किया हुआ है। इसलिए हमारे जो कोर्स का नाम ही है कि एडवांस कॉम्बो न्यूमरोलॉजी कोर्स। न्यूमरोलॉजी में कुछ भी बेसिक नहीं होता, जो होता है एडवांस होता है। इसलिए हमने इन 5 मेथड्स को ऐड किया हुआ है, और साथ ही साथ हमने कुछ इसमें एडिशनल मेथड लगाई हुई है जो कि अकल्ट साइंसेस की है। जैसे कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, केपी न्यूमरोलॉजी है। केपी अपने आप में एक अलग मेथड है, मेडिकल साइंस अपने आप में एक अलग मेथड है, वास्तु अपने आप में एक अलग मेथड है, मोबाइल अपने आप में एक अलग मेथड है। लेकिन हमने इन सब में भी न्यूमरोलॉजी को ऐड किया हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी मतलब अंक शास्त्र। अंकों का जो महत्व है आपके पैदा होने से लेकर मरने तक आपके साथ जुड़ चुका है। आप जिस डेट में पैदा होते हैं वहां पे भी एक डेट ऑफ बर्थ आता है, वहां पे भी एक टाइम आता है, वहां पे भी एक प्लेस आता है। तो उनके बीच में भी कोई ना कोई नंबर जिनको डिनोट करता है। फिर जैसे जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, आप थोड़े बचपन से बड़े होते हैं, आप किसी कॉलेज में चले जाते हैं, किसी स्कूल में चले जाते हैं, तो वहां आपको क्या मिलता है? एक नाम मिल जाता है, आपको एक रोल नंबर मिल जाता है, आपको कोई सीट डिसाइड हो जाती है, कोई सीट नंबर मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक, यहाँ तक कि मरने तक, आपके साथ एक नंबर साथ में चलता है। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में नंबर जुड़ा हुआ है। मरने की डेट में भी जुड़ा हुआ है, शादी की डेट में जुड़ा हुआ है, बच्चों की डेट में जुड़ा हुआ है। हर एक चीज में आप देखेंगे कि नंबर्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि नंबर आपके साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही एक नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है जो कि आपको पैदा होने के बाद मिल जाता है, और उसी नाम से आप इस संसार में जाने जाते हैं। तो आप सोचिए कि यदि 500 लोगों के बीच में हम यदि आपको उस नाम से पुकारें तो आपकी पहचान एक अलग समझ में आ जाती है। तो जब 500 लोगों में जब अलग से पुकारा जाता है आपका नाम, तो आपकी पहचान अलग से समझ में आ जाती है। इसका मतलब आपके नाम का एक महत्व है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस संसार में जो भी चीजें चल रही हैं, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एनर्जी का ही रूप है। हर एक चीज में कोई ना कोई एनर्जी है। तो वैसे ही एनर्जी जो है वो इन नंबर्स में भी है, इन नेम के लेटर्स में भी है। हर एक चीज में, हर एक कलर्स में भी एनर्जी है। हर एक चीज में एनर्जी का समावेश है।
तो इस शास्त्र के माध्यम से हम और आप उस एनर्जीज को कैसे बैलेंसिंग करना होता है, उस एनर्जी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, उस एनर्जी का सही यूज कराना है और करना है, इस कोर्स के माध्यम से हम समझेंगे और सीखेंगे। और वो चीज आप अपने साथ भी, अपने घर वालों की लाइफ में भी और अपने क्लाइंट में भी अपना चेंज कर सकते हो। एनर्जी, कुछ एनर्जीज खराब होती हैं, कुछ एनर्जीज अच्छी होती हैं। एनर्जीज को कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते, एनर्जी को केवल हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। तो ये जो एनर्जीज है, इसी को हमें अच्छे ढंग से तैयार करना है, इसी एनर्जीज को हमें करेक्शंस करने होते हैं, इसी एनर्जी को हमें मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के थ्रू इनको प्यूरिफाई करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी डेस्टिनी द्वारा तय किया गया नंबर है, चाहे वो कुआ नंबर के थ्रू हो, चाहे वो डेस्टिनी नंबर हो, आपका कंडक्टर नंबर हो, ड्राइवर नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर जो आपको मिला हुआ है उस डेस्टिनी के थ्रू, उसमें अभी कुछ पॉजिटिविटी होगी, कुछ नेगेटिविटी होगी। तो इस कोर्स के माध्यम से आप उस नंबर के पीछे की जो फ्रीक्वेंसीज है, जो उसकी एनर्जीज है, उसको आप करेक्शंस करने की कोशिश करोगे, उसके बैड रूप को, मतलब खराब एनर्जीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। तो वही नंबर आपके लिए पॉजिटिविटी का कारक बन जाएगा, वो ये नंबर आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। और फिर जब वो नंबर आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा तो आपके आसपास का वातावरण, आपके खुद की एनर्जीज, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। जब वो पॉजिटिव हो जाएगी तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। जब आप किसी नंबर को एक्टिवेट करते हो, पॉजिटिव करते हो, तो आप देखेंगे कि आपके होने वाली लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो उसी नंबर से संचालित होना चालू हो जाते हैं, एग्जीक्यूट होना उसी नंबर से चालू हो जाते हैं। अब ये जो नंबर है वो आपकी लाइफ में आपको डेली टू डेली लाइफ में कहीं ना कहीं नजर आता दिखेगा। हो सकता है ये आपके सामने से गुजरे गाड़ी के नंबर के रूप में, मोबाइल नंबर के रूप में आ सकता है, आपके क्लाइंट को कुछ ऐसे नंबर हो कि वो आपके नंबर में आ जाए, मतलब आपके पास ऐसे क्लाइंट के फोन आए जो आपका फेवरेबल नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है। तो जब आप इन्हीं नंबर्स को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करते हो तो यही नंबर्स आपकी लाइफ में घूम फिर के कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं और वही नंबर आपको एक प्रॉफिट देके जाते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो शास्त्र है ये लाइफ को बनाने की शास्त्र है, इससे भविष्य देखा नहीं जा सकता, इसको भविष्य बनाने की विधा कहते हैं। न्यूमरोलॉजी से आप, ऐसा नहीं है कि आप आने वाले फ्यूचर को देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी मतलब अंक शास्त्र का यूज करके आप आने वाले फ्यूचर को और आज के टाइम को वेरीफाई कर सकते हो, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कोशिश कर सकते हो। उससे आप भविष्य नहीं देख सकते, भविष्य देखने की जो मेथड है वो और भी है हमारे पास, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको भविष्य का अनुमान नहीं लग सकता। न्यूमरोलॉजी आपको भविष्य का अनुमान लगा सकती है, लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं लगा पाती है। ये मैं सच बात कर रहा हूँ इस चीज की कि न्यूमरोलॉजी शास्त्र के माध्यम से आप किसी भी इवेंट को एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं निकाल सकते हो, लेकिन हाँ आपको एक अनुमान जरूर लग जाता है कि इस साल शादी होगी, इस साल के इस महीने में शादी होगी, इस साल के इस हफ्ते में शादी हो सकती है। लेकिन ये जो शास्त्र है ये आपको लाइफ में जीना कैसे है, लाइफ को बनाना कैसे है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आपके लाइफ के एनवायरनमेंट को इन एनर्जीज के, किसकी एनर्जीज के, इन नंबरों की एनर्जीज के थ्रू कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, ये आप इस कोर्स में सीखेंगे। इस कोर्स में आपको, जैसा कि आपने पोस्टर में देखा है, लिखा हुआ है बोनस। बोनस में आपको 6 टाइटल शो हो रहे हैं, 6 कॉन्सेप्ट शो हो रहे हैं।
जिसमें से पहला जो कॉन्सेप्ट है वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी के अंदर आप जो भी नंबर्स की डिसीजेस हो जाती हैं, जो नंबर की डिसीजेस होती हैं, आप उसके बारे में जानेंगे। उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट होता है आपकी लाइफ में, आप उसके बारे में जानेंगे और उसके उपाय के बारे में जानेंगे कि उसके लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सेकेंड जो टाइटल है वो है होरारी न्यूमरोलॉजी। आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आएंगे जिनको खुद के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, जिनके उनको नहीं पता कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपने पास एक क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप इस टाइटल के अंदर होरारी न्यूमरोलॉजी में किसी भी व्यक्ति से होरारी नंबर पूछकर, मतलब प्रश्न पूछकर, उससे एक नंबर पूछेंगे और वो नंबर आपको उस प्रश्न के जातक का उत्तर देगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूमरो वास्तु। जो भी ग्रिड आप यूज करेंगे, चाहे वो लूशो का हो, वैदिक का हो या कोई भी ग्रिड हो, वो ग्रिड 9 ग्रिड बनता है। उस 9 खंडों के ग्रिड में वास्तु के भी दिशाएं तय हो जाती हैं और उसी दिशा से आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में किस चीज की मिसिंग होगी। और वास्तु यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो जैसा कि वास्तु का नाम ही है, जहां आप वास करें, मतलब आपके घर में कौन सी चीज की मिसिंग होगी, कहाँ कौन सी चीज होगी, वो चीज आप न्यूमरो वास्तु से बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट लाइफ कर्मा टेक्निक है। ये जो पास्ट लाइफ कर्मा टेक्निक है ये सबसे डिफरेंट है। ये हो सकता है कि आपने अभी तक इसको सुना ही ना हो। इस टेक्निक में आप अपने पूर्व जन्म में क्या थे वो इसमें आप आराम से पता चल जाएगा आपको। आपको पूर्व जन्मों के किन कारणों के कारण आपकी इस लाइफ में वो नंबर्स आपको परेशान कर रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा इस टेक्निक के माध्यम से। और जो पास्ट लाइफ कर्मा की टेक्निक्स होती है, जब आप पास्ट लाइफ के कर्मा के टेक्निक्स को सुधारते हो, उसकी एनर्जीज को सुधारने की कोशिश करते हो, तो आपका ये जो जीवन है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। देन उसके बाद केपी न्यूमरोलॉजी है। इसमें हमने न्यूमरोलॉजी को केपी के साथ भी इंक्लूड किया है। यहाँ पर हम केपी का संपूर्ण ज्ञान तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन आपको न्यूमरोलॉजी के साथ जब हम केपी ऐड करते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है, उसमें काफी चमक आ जाती है, उसमें आप इवेंट फाइंड कर पाते हो। फिर है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आज सभी के हाथों में, गरीब से गरीब बच्चे के हाथ में भी आज मोबाइल है, और उस मोबाइल में एक सिम लगती है जिसका कोई एक नंबर होता है। उस मोबाइल का भी एक कलर होता है, उस मोबाइल का भी एक साइज होता है। तो इन चीजों का भी आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि आप देखें कि आपके हाथ में एक मोबाइल ऐड है, हमेशा के लिए जुड़ गया है वो। और आज का टाइम ऐसा है कि आप बिना मोबाइल के रह भी नहीं सकते। तो जिसके बिना आप रह नहीं सकते उसका लाइफ में अब एक इम्पैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा भी और बुरा भी। तो कैसे आप बुरी चीजों को अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज में सीखेंगे। इसमें एक चीज और आप सीखेंगे कि राइट डिसीजंस, जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के ऑब्जेक्टिव्स आपके पास मौजूद होते हैं, कि बहुत सारे आपके पास डिसीजंस लेने के लिए चीजें हैं। मान लीजिए आपके पास, आपको ये डिसीजन लेना है कि आप 10वीं क्लास में हैं, आपके पास 4 से 5 सब्जेक्ट है। उन 4 से 5 सब्जेक्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आप कैसे पता करेंगे? तो डिसीजंस मेकिंग की जो प्रोसेस है वो आप इस कोर्स में सीखेंगे। सेकेंडली चीज, आप किसी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, किसी रोड के चौराहे पे खड़े हैं, आपके सामने 3 चौराहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते को चुनूं, तो वो इस कोर्स के माध्यम से समझेंगे, वो आपको एक बेस्ट डायरेक्शन देगा। और ऐसे ये तो मैंने जस्ट एक दो एग्जांपल ही दिए हैं, ऐसे हम तमाम चीजें सीखेंगे इस कोर्स के। यदि मैं सिलेबस की बात करूं,
तो देखिए इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो लोशो और वैदिक, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि लोशो से बहुत सारी कोड्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आप नेमरोलॉजी, नेम करेक्शंस, ये सारी उसमें इंक्लूड होती हैं। वैदिक में अपने योग होते हैं, लोशो में अपने 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो जो लोशो का पार्ट है, जो वैदिक का पार्ट है, जो पाइथागोरियन का पार्ट है, वो तो इसमें ऑलरेडी कवर्ड है ही। बाकी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं कि उसमें हम 5 जो एडिशनल बोनस हैं हमारे, मेडिकल निम्नोलॉजी, होरारी निम्नोलॉजी, निम्रो वास्तु, पास्ट लाइफ कर्मा टेक्निक्स, केपी निम्नोलॉजी, मोबाइल निम्नोलॉजी, इसके आप कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझेंगे और अपनी निम्नोलॉजी की जो शाखा है उसमें काफी ब्रशअप होगा, उसमें चमक आएगी। कोर्स की यदि हम बात करें तो देखिए इसमें जन्म तिथि और अवसर के बारे में समझेंगे, कर्म और मास्टर नंबर के बारे में समझेंगे, व्यक्तियों के बीच संबंध कैसे होते हैं इसके बारे में आप समझोगे, दिल की इच्छा का संख्या, जन्मदिन की संख्या क्या है, व्यक्तित्व संख्या क्या है, नामों के बीच का संबंध क्या है, उपनाम और मध्य नाम, मिडिल नेम का और लास्ट नेम का और फर्स्ट नेम का क्या इम्फेक्ट होता है, उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, जन्मदिन की माता का अंक क्या है। तो ये बहुत सारा सिलेबस इसमें डिस्क्राइब किया गया है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यदि हम होरारी निम्नोलॉजी में बात करें तो आप होरारी निम्नोलॉजी के माध्यम से जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यस और नो के, हाँ या ना के, कि भाई क्या मेरी जॉब लग सकती है, क्या इस साल मेरा ये काम हो सकता है, क्या मेरा घर बन सकता है, क्या या मेरा घर कब बनेगा, क्या मुझे इस साल डिवोर्स मिल जाएगा, क्या मेरी इस साल शादी हो जाएगी, क्या मैं इस साल बाप बन सकता हूँ, क्या मेरी इस साल संतान हो सकती है। इस तरीके के जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो इसमें कलेक्ट होंगे। साथ ही साथ इस कोर्स में आप जो सबसे मेन टॉपिक है वो है हमारा पास्ट लाइफ कर्मा टेक्निक, जो मुझे सबसे यूनिक लगता है, जो सबसे ज्यादा डिफरेंट लगता है। आपने बाकी के कॉन्सेप्ट तो देखे ही होंगे आई होप कहीं ना कहीं, लेकिन इस कोर्स में जो सबसे डिफरेंट थिंग है वो है पास्ट लाइफ कर्मा टेक्निक, जो इस कोर्स को बहुत अलग रूप से प्रस्तुत करता है। अब गुरुजी से आज्ञा चाहूंगा कि गुरुजी आप जी, कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। देखिए, इसके अलावा अंकित जी ने बहुत बहुत कुछ बता दिया। इसके अलावा भी इस कोर्स में मैं आपको जो और चीज़ें बताऊंगा, एक तो नेम करेक्शन सिखाऊंगा जो यूनिक है। दूसरा, आपको दशा निकालना, महादशा निकालना, जैसे अपने वैदिक में विंशोत्तरी दशा होती है, इससे भी दशा निकाली जा सकती है। एक अपन को, देखिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका टैलेंट है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो नाम है वो आपकी डेस्टिनी है, उसको आप बदल सकते हैं। तो और आपका मोबाइल नंबर जो है वो जो 10 अंकों का है, वो उसमें कौन से अंक ज़्यादा लिए जाएं, और जो चीज़ आपको चाहिए, आपको पैसा चाहिए, कौन सा अंक लेना चाहिए, आपके बच्चे की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, कौन सा अंक लेना चाहिए, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कौन सा अंक लेना चाहिए, आपको विदेश यात्रा करनी है, कौन सा अंक लेना चाहिए, और 10 अंकों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे कैसे रखना चाहिए, और लास्ट के जो 3 नंबर है और फर्स्ट 2 नंबर है वो क्या रखने चाहिए, ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपकी गाड़ी नंबर और आपका फ्लैट नंबर वो ले चुके हैं तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है वो भी सिखाऊंगा। और इसके अलावा जो एक बड़ी यूनिक चीज है, जो आजकल विशेष चल रही है, किसी की कोई चीज खो गई तो कहाँ पर रखी है, या मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किस दिशा में गई है, या लेने वाला व्यक्ति कौन है, ये पता लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई डाउट है तो हम तीनों में से किसी से भी पूछ सकता है। देखिए इस कोर्स का जो डेमो सेशंस है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमारा ये कोर्स बहुत पहले स्टार्ट होना चाहिए था बट अभी हो नहीं पाया किसी कारणवश। और ये जो कोर्स है वो मंडे से स्टार्ट होगा, और जैसा कि इसमें आपको नाम से समझ में आ रहा है कॉम्बो, तो ये जो कोर्स है वो कॉम्बो लोग ही कराएंगे, मतलब मैं भी कराऊंगा, सर भी कराएंगे, सुनीता जी भी कराएंगे। तो ये सब जो कोर्स है वो मिलकर कराने वाले हैं हम लोग। तो इस कोर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट पीपल से डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेंगी।
साथ ही साथ इस कोर्स की जो फीस है वो 3333 है। जो भी बंदा इसमें इच्छुक है, करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो आज रात तक, और सॉरी कल तक आप फीस डिपॉजिट करा के इस कोर्स में अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। हमारी जो क्लास होती है वो काफी लिमिटेड लोगों के साथ ही होती है, इसलिए इस क्लास की जो सीट है वो ऑलरेडी 20 सीट्स हैं, जिसमें से अभी 5 सीट्स भर चुकी हैं अभी तक, तो ऑलरेडी 15 सीट्स हमारे पास बची हैं। तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो कल दोपहर तक फीस डिपॉजिट करा के इस कोर्स में भागीदारी हो सकता है। अब यदि आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या अपनी जन्म तिथि से कुछ भी पूछना है, तो हमारे सर अवेलेबल हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी को भी आपको यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है। अंकित जी, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। जो भी ये कोर्स करेंगे, दिस इज नॉट वन टाइम कोर्स, इट इज अ लाइफ टाइम सपोर्ट। एनी टाइम एनी डाउट रिक्वायर्ड, वी आर देयर टू सॉल्व, एंड गुरुजी इज एनी टाइम। कुछ भी डाउट है तो ये नहीं कि अभी कोर्स करें हम लोग हाथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस, जब तक आपको डाउट क्लियर खत्म नहीं होता है, वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू। अंकित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1961। 1/11/1961। हाँ जी। हाँ, पूरा नाम क्या लिखते हैं? नरेश सेठी। NARESH। हाँ, SCTHI। नरेश सेठी। हाँ जी। ओके, जस्ट अ मिनट। बट जो बैंक में जो अकाउंट में जो नाम है वो नरेश कुमार सेठी के नाम से है। जी जी जी। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये ठीक रहेगा? जी जी, एक मिनट बताता हूँ सर। मैं होल्ड। देखिए, आपको तो ऑकल्ट में ही आना चाहिए, क्योंकि आपका देखिए कुआं नंबर जो है व्यक्ति का, जो कम से कम 25% रिजल्ट देता है, तो कुआं नंबर ये व्यक्ति को बताता है कि व्यक्ति को किस फील्ड में जाना चाहिए। जो आपका गुरु है 3 नंबर है वो आपका, और वैसे आपका 1 और 2 है, मतलब आपका जो मूल्यांक जो है वो 1 है और भाग्यांक 2 है। जीवन में एक बार पूरा डाउनफॉल आएगा, देन गो ग्राउंड अप, क्योंकि आपके वैदिक गणित में 1 जो है वो 4 बार बनता है। और थोड़ी सी कमांडिंग पर्सनैलिटी है आप, मतलब घर में अपनी चलाते हैं। ऐसा है या नहीं है, बताइए मुझे। और एक थोड़े से एनर्जेटिक हैं आप, क्योंकि इसमें 2 2 7 6 का कॉम्बिनेशन है, तो आप हमेशा किसी भी काम के लिए तैयार रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली राइट। हाँ हाँ सर। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। एक मिनट। मुझे एक चीज बताइए, पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ थे, उसके बाद आप अलग हो गए या अभी भी साथ हैं? नहीं, मैं शुरू से ही ड्यूटी लाइन में हूँ। और आपकी आवाज कट रही है नरेश जी। हेलो, आ रही है जी? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बताइए, क्या पूछना चाह रहे थे? आपकी भी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। कि आपके पेरेंट्स आपके साथ थे और उसके बाद आपसे अलग हुए। नहीं, पेरेंट्स तो एंड तक हमारे साथ ही रहे हुए हैं। अब तो वो एक्सपायर हो गए ना मेरे पेरेंट्स। हाँ, अभी नहीं है, करेक्ट। हाँ, दूसरा आपके घर की दिशा जो है, आपके घर की जो एंट्रेंस है वो आपके साउथ की फेसिंग नहीं है। इज इट करेक्ट? हाँ, साउथ नहीं है, ईस्ट है। ओके, गुड। एक आपके घर में 3 दरवाजे एक लाइन में है।
वेस्ट है, वेस्ट वेस्ट एंट्रेंस वेस्ट की है। ओके, मतलब साउथ नहीं है। दूसरा, आपके घर में 3 दरवाजे एक लाइन में है या 2 दरवाजे और एक खिड़की एक लाइन में है? 3 दरवाजे एक ही लाइन में है। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट बोलिए। 3 दरवाजे एक ही लाइन में है। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, या तो 3 दरवाजे या 2 दरवाजे एक खिड़की एक लाइन में। मैं रेक्टिफिकेशन भी समझाऊंगा आप लोगों को, इनको रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये क्या नुकसान करते हैं, ये धन की हानि करते हैं और आपके फर्दर प्लानिंग्स को बिगाड़ते हैं। अच्छा जी राइट। गुरु जी मेरा ले लीजिए। बोलिए, हाँ, मेरा ले बोलिए, लीजिए। बोलिए बोलिए। 14 फरवरी 14 फरवरी जी 1956। ओके। पंकज जी मैं भी बात करना चाहूंगा चंडीगढ़ से। हाँ, आप वो बोलिए, आपका टाइम बोलिए, डेट ऑफ वो मोबाइल नंबर, ये आपका 16/7/69 गुरमीत सिंह। नहीं, आपका एक एक बोलिए, एक एक। 14 फरवरी 1956 सुबह के 2 बजे। नहीं, टाइम नहीं चाहिए मुझे आपका नेम चाहिए, फुल नेम। अनिल कुमार। ANILKUMAR। अनिल कुमार गुप्ता, ये लिखता हूँ। ओके, जस्ट ए मिनट। चलो बच्चे, चलो इस गाय को तो बिल्कुल चाहिए। आप ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते, इज इट करेक्ट? मैं तो ग्राउंड में रहता हूँ जी। तो बेडरूम आपका ग्राउंड पर नहीं है, इट मींस। नहीं, हमारा ग्राउंड पे ही है बेडरूम। मेरा बेडरूम ग्राउंड पे ही है। अभी ये बेडरूम में ही हूँ, अपने रूम में हूँ। पांच एक का कॉम्बिनेशन है आपका, 5 आपका मूल्यांक है, भाग्यांक 1 है, राइट? जी। नॉर्थ की तरफ फेसिंग है आपका मकान का या नहीं है? हाँ, हमारा तो मकान पे ईस्ट और नॉर्थ दोनों है। एक कोने में नॉर्थ है, एक में ईस्ट है। परफेक्ट, परफेक्ट। क्योंकि आपके मकान का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से आ रहा है, तो मैंने देखा। एक आपके मकान में जो टॉयलेट है वो जी। साउथ वेस्ट में है, साउथ में। नहीं जी, एक टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है और एक ईस्ट में है। नहीं, साउथ की तरफ भी कोई टॉयलेट है? नहीं, कोई नहीं है। या कोई गलत चीज है वहां पर? साउथ वेस्ट? हाँ जी, साउथ वेस्ट में? नहीं, साउथ में तो वॉल है हमारी, बंद है साउथ की तरफ से। नहीं, साउथ वेस्ट में क्या चीज है जो दिखा रही है कि कोई रॉन्ग प्लेसमेंट है वहाँ पर, गलत है वो? नहीं, साउथ वेस्ट में तो कुछ भी नहीं है, कमरे बने हुए। अच्छा। और दूसरा आपका जो टेम्पल है वो रॉन्ग प्लेसमेंट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं है। कहाँ पर जी? नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका वो टेम्पल नहीं है, टेम्पल वर्शिप प्लेस। नहीं, हमारा जो टेम्पल है वो नॉर्थ में है। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है ना, मैंने बताया था अभी आपको। जी।
नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट को उसको वहाँ से तो रेक्टिफिकेशन कराइए, नहीं तो देखिए क्या देता है, ये आपके लिटिगेशन कर देगा और कोई बच्चे को तकलीफ कर देगा। कोई लिटिगेशन की प्रॉब्लम होगी या कोई बच्चे को तकलीफ हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, अगर वहाँ पर आपका टॉयलेट है तो जी। वो आपको गड़बड़ी कर देगा। अच्छा जी। हाँ, ऐसा है क्या? कोई लिटिगेशन है आपके? मैं तो भी वकील ही हूँ, लिटिगेशन तो मैं औरों के करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, ठीक है सर, नेक्स्ट बोलिए। सर गुरमीत जी बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। बोलिए गुरमीत जी। 16/7/69 जी। क्या लिखते हैं पूरा नाम? गुरमीत अच्छा, गुरमीत 16 सिंह 7 लिखता हूँ। 69 जी। 69 राइट? हाँ जी। 7 3 का कॉम्बिनेशन है। जी। अगर तो मेंटल लेवल बहुत अच्छा है और पारिवारिक भी आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, परिवार भी आपका बहुत अच्छा है, मतलब जी। वहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जी सर। कभी कभी किसी एक ट्रैक पर चलते हुए एकदम से हट जाना एक हैबिट में है क्या? जैसे कभी एक ट्रैक पर चल रहे हैं उसमें एकदम से हट जाना। जी नहीं, जो सोच लेता कभी हूँ वो कर, किसी, ट्रैक को छोड़ता जी नहीं मैं, ट्रैक को कंप्लीट करके ही छोड़ता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि 7 नंबर जो है इंडिकेट करता है कि कोई हम्म, ट्रैक को अगर छोड़ेंगे तो नुकसान में रहेंगे, तो ट्रैक को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपके। और मुझे एक चीज बताइए, कोई जी। संतान को लेकर भी आपको कोई टेंशन है क्या? जी नहीं, दोनों सेटल हैं बेटे। हम्म, और घर का दरवाजा वेस्ट वेस्ट की तरफ है आपका? जी वेस्ट की तरफ हाँ जी वेस्ट की तरफ भी आ जाता है। वैसे एंट्रेंस हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ करते हैं, टेंपल भी हमारा नॉर्थ ईस्ट है। हाँ नहीं, टेम्पल परफेक्ट जगह पर है, आपकी किचन परफेक्ट जगह पर है। ऑल सेंटर राइट। में कोई चीज रखी हुई है अभी? अभी सेंटर में कोई मतलब कोई भारी चीज रखी हुई है? क्योंकि इसमें जो आपका सेंटर प्लेस है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है, लेकिन मेन एंट्रेंस परफेक्ट है आपकी, वेस्ट नहीं है। तो मेन जो आपका सेंटर प्लेस है उसको थोड़ा सा आप, जो भी कोई चीज है वेट वाली है उसको थोड़ा सा आप सेंटर प्लेस से हटा दीजिए, तो अच्छे सेंटर रिजल्ट और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेंटर प्लेस मोरनडी खाली है जी। नहीं, उसमें कोई चीज रखी हुई है, खाली तो है बिल्कुल, लेकिन कोई या तो कोई कोई लोहे की चीज या कोई लकड़ी की चीज रखी हुई है। चलो फिलहाल मैं चेक कर लूंगा। हाँ, ये चेक कर लीजिए, और जो भी ट्रैक पे आप चल रहे हैं उसको आउट मत होने दीजिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आपकी में देखिए 319 फुल पूरा ऊपर का ग्रिड दिखाता है और 6 7 पूरा दिखाता है, और 7 3 का कॉम्बिनेशन है, इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन। कि अब आगे इसमें एस्ट्रोलॉजी में मान लीजिए मैं आगे बहुत कितना अच्छा है, फिर बहुत अच्छा है। 7 और 3 दोनों जो है इंडिकेट करते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे ले जाने वाले हैं। क्योंकि नेम और 7 फिर भी जो है वो केतु है, केतु जो है वो आपकी रिसर्च है, और 3 नंबर जो जुपिटर है आपको इसी फील्ड में ऑकल्ट में आगे ले जाने वाला है। और वैसे भी आपकी ड्रिल में मैं देखता हूँ वो आपने 7 डबल 2 बार है, डबल 6 प्रॉस्पेरिटी भी अच्छी है, और 3 नंबर जो है वो भी परफेक्ट जगह पर है। जी। और जिनके 319 का कॉम्बिनेशन बताओ दिमाग पे काम करते हैं, इमोशनल कम होते हैं। जी ये बिल्कुल राइट सर। जी सर नमस्कार, मैंने सर भी पूछना है। मेरा पूछना सर है जी, सर मैंने पूछना है, मैं सर जी मोहिनी बोल रही नमस्ते। हूँ। हाँ, बोलिए। हेलो। सर सर 23/11/76 है। मुझे, मैं अभी ना, जैसे इंट्रोडक्शन में पूछा था कि ऑकल्ट में कितना अच्छा रहेगा मेरा, तो क्या आप वो बता पाएंगे? हाँ, क्या नाम लिखते हैं आप? ममता रानी। ममता रानी।
रानी, ओके। 23/11/1976। मैडम ऑकल्ट में बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि 5-3 का कॉम्बिनेशन है। 5 बुध को इंडिकेट करता है, 3 जुपिटर को इंडिकेट करता है। अपन भी अगर वैदिक से देखते हैं तो किसी के चार्ट में भी अगर बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है या उसका एस्पेक्ट बनता है, या गुरु अपनी कारक जगह पर होता है या अष्टम भाव में होता है, तो उसको हमेशा ऑकल्ट में काफी आगे ले जाता है। बुध जो है अगर लग्न में है या कारक जगह पर है, सर बुध मेरा अष्टम में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अष्टम भाव जो है वो गुप्त विद्या का है, यस सर। ऑकल्ट का ही है वो भी। ठीक है, तो काफी आगे जाएंगे। गुरु भी आपका अच्छी जगह पर होना चाहिए। सर गुरु द्वितीय में है। हाँ, तो सेकंड कारक जगह है गुरु की, तो आपको जी तो। सर। और देखिए, गुरु की कारक जगह 2, 5, 9, 11 ये गुरु की जी सर। कारक जगह है, और जी 12 सर। को भी मानते हैं। अगर जी इसमें सर। है तो बहुत अच्छा है। और अष्टम भाव में अगर बुध है तो देखिए, ऑकल्ट का अष्टम भाव ही है, गुप्त विद्याओं का अष्टम भाव ही है यस सर। है ना। या तो केंद्र में हो या अष्टम भाव में हो या कारक जगह पर हो, तो व्यक्ति को ऑकल्ट में काफी आगे तक ले जाता है। अब आपका एक बार मैं चार्ट और बना के देख लेता हूँ, यस उससे भी सर। पता लग जाएगा कितना रिजल्ट है। यस सर। सर जी नमस्ते सर जी। हेलो जी जी, एक मिनट में इनका कर लूँ, फिर मैं आपका देखता हूँ। सर। बिल्कुल सर, अभी आप ले लेते हैं सर, ग्रीन स्टूडियो से अभी ले लेते हैं आपका। हाँ जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, सभी का लेंगे, मेरा जितने नाम भी हैं लोग सबका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम रुद्र कुमार दास है, एक और मिनट, मेरा इनका मैं जन्म कंप्लीट कर दूँ तारीख है एक बार। सर। हेलो एक मिनट, इनका हेलो। कंप्लीट कर लूँ, फिर आपका लूंगा। जी जी सर। मैडम आपके नाम को थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं आपको उसमें क्लास में बताऊंगा, तो बहुत यस अच्छे सर। रिजल्ट मिल जाएंगे। ऑकल्ट के लिए तो बहुत अच्छी कुंडली है आपकी, लेकिन नाम थोड़ा सा, वाइब्रेशन थोड़ी सी अगर अपन चेंज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आपके मकान का अपन जो फेसिंग है, या तो नॉर्थ में हो या फिर ईस्ट ईस्ट में हो। सर ईस्ट फेसिंग है। करेक्ट, क्योंकि दिख रहा है ये नॉर्थ हो या ईस्ट हो, इसमें दोनों में आपको प्रॉमिस दिखा रहा है। देखिए, इसमें एक और आपके विशेष चीज बता दूं मैं आपको। मुझे एक यस चीज सर। बताइए कि कभी आपको ऐसी चीज हुई क्या कि एक बार आपको कोई घर से तकलीफ हुई, फिर बाद में वापस आप सेटल हुए? इज इट करेक्ट? क्या सर, क्या हुआ? मतलब कोई तकलीफ हुई और बाद में वापस रिसेटल्ड हुई? नहीं सर। क्योंकि 3-2 का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। किसी तकलीफ भी हुई चीज बात। को लेकर पहले कोई ट्रबल हुई, बाद में सेटल हुई हो? नहीं सर, अगर प्रॉब्लम हुई तो वो एज ए प्रॉब्लम ही रही, सेटल कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सेटल होने की पूरी उम्मीद है। ये तो 3-2 का कॉम्बिनेशन नहीं दिखाता कभी भी। ठीक है, एक यस सर। एक एक आपके नाम को 5 नंबर पे लेके आना है, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। सर ओके सर। सर पाइथागोरियन से? नहीं नहीं नहीं, हमेशा नेम करेक्शन चिलिडियन से होता है। चिल्ड्रन से, चिलिडियन में ओके। सिर्फ एक ही नंबर है कीरो से। कीरो में 5 नंबर है एक्स का, और चिलिडियन में 6 नंबर है, और इसी से नेम करेक्शन होता है। इंडिया के जो बड़े से बड़े जो नेम करेक्शन करने वाले हैं, जैसे यस संजय सर। रुवानी है, वो इससे चिलिडियन से करते हैं। और चिल्ड्रन नाम से, की वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन है जो व्यक्ति को काफी अच्छा प्रगति देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है। यस सर। यस सर, ओके, सर थैंक यू सर। चलिए, बोल रहा हूँ नेक्स्ट बोलिए। 10 25 नंबर सर जी अभी पहले मेरा कौन बोल रहे थे? हाँ बोलिए 10 बोलिए। 9 सितंबर 1983। हाँ हेलो। बोलिए सर, आप पहले आप बोलिए जो पहले बोल रहे थे। हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए जी, मैं ही बोल रहा हूँ। बोलिए। रुद्र कुमार दास। रुद्र सर कुमार जी दास। मेरा, जी सर, 9 सितंबर 1983। 1983, सर 83। ओके। जी सर, और मेरा वर्क टाइम है सुबह के 5:13। नहीं, बर्थ टाइम की जरूरत नहीं मुझे। जी जी। एक्चुअल में शनि उच्च का है, तो थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम तो होगी आपको।
जी सर है ना आपकी कुंडली में? हाँ 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 सर जी, तीसरे नंबर पे। जी जी जी, थोड़ी सी कमांडिंग पर्सनैलिटी है जी जी सर। और अच्छे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं अभी। हाँ सर, लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत डामाडोल चल रहा है। आपका नाम में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। नाम को आगे पीछे करेंगे बस, और नाम के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मतलब क्या क्या करना सर? आपके आपके नेम को जो है वो मैं 6 नंबर पे लेके आऊंगा, तो रिजल्ट मिल जी जाएंगे। सर, तो मुझे नाम परिवर्तन करना पड़ेगा या? अब देखिए, नाम कभी भी चेंज नहीं होता। जो एक बार आपके जो भी जान, क्योंकि नेम केवल इनहेंस करना पड़ता है। आपके सोशल मीडिया पे उसको या फिर 28 डेज 28 टाइम लिख दें, उससे भी एनहेंस हो जाता है। तो नेम को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जी उसको एनहेंस करना पड़ता है। तो नाम की वाइब्रेशन आपको रिजल्ट देना चालू कर देती सर मेरा है। ठीक है, हेलो जी हेलो। नमस्कार सर। हाँ सर, ठीक बोला। सर जी कुछ कुछ पूछना है मुझे। हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। सर, मैं 99 से इस प्रोफेशन में हूँ, हाँ, वो लेकिन तो सर दिखता है। इतना बढ़ोतरी नहीं हो रहा है सर। मैं जहाँ था, केवल मतलब मेरे से नीचे वाले ऊपर चले गए, मैं जहाँ था वहीं पे। हाँ, क्योंकि ईगो, देखिए ईगो की प्रॉब्लम है। मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, जी क्योंकि शनि उच्च का है आपके। कौन सर लग्न कौन प्राची। सा है आपका? जी जी हाँ बोलिए प्राची जी। हाँ सर, प्राची घोलप, 10 नवंबर 1989। क्या पूरा नाम क्या लिखा बोलते हैं मैडम? PRACHI, प्राची घोलप, GHOLAP। GHOLAC। AP है सर लास्ट में, P। ओके 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 ओके। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 10 नवंबर 1989। सर मुझे थोड़ा सा एड्रेस। कि मेरा ऑकल्ट में नाम हो गया क्या, नाम होगा क्या सर एक्चुअली, प्रोफेशन के सर? आपको आपको चार्ट ध्यान है आपका? हाँ ऑकल्ट में अच्छा जा सकते हैं, तो सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है आपका। ओके। ऑकल्ट में जा सकते हैं, लेकिन जैसे आपका, जैसे आपने मुझे नाम बताया, इसको चेंज करना पड़ेगा उसकी। और थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एग्रेशन है आप में, यस एग्रेसिव है थोड़े से आप। यस। उसको थोड़ा सा आप जैसे मेडिटेशन करके या कैसे भी उसको थोड़ा सा कम करिएगा, क्योंकि 111 है और 99 है, और उसके साथ 88 है, तो ये कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड। सर मेरा 89 है सर। हाँ, मैं देख लिया 89 है आपका। राइट। सर लोकेश पुरोहित बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि बोलिए बोलिए। जैसे आपने बोला कि ऑकल्ट में सर अच्छा हो गया क्या सर एक्चुअली, अगर मैं इसमें प्रैक्टिस? आपका गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है लग्न कुंडली में? में सर एक्चुअली 4th हाउस है? में गुरु है मेरा, और अष्टम में बहुत बुध अच्छी है। है। दोनों ही अच्छी जगह पर है। ओके एंड 4th हाउस में गुरु की, हाँ, 4th हाउस में गुरु बहुत अच्छी जगह पर है। आपका लग्न क्या है? लग्न मीन लगन है और मीन राशि है सर। बताइए, लग्न इसी 4th हाउस में बैठा हुआ है। यस यस। और चंद्रमा लग्न लग्न में बैठा है सर। जी, वो भी बहुत अच्छी बात है। और शनि 10th हाउस में है सर, शनि और शुक्र की दशा चल रही है सर मेरी अभी। यानी बहुत अच्छी जगह पर है। और शुक्र कहाँ पर है? सर शुक्र 10th हाउस में बैठा है सर, और शुक्र की हम्म, दशा चल रही है सर अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और लग्न मीन लग्न है आपका, राइट? मीन लगन है सर। थोड़ी दशाएं थोड़ी सी वीक है, क्योंकि योग कारक नहीं होता। मीन लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक नहीं है।
ठीक है, मैं क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा नेम को अपन चेंज करेंगे तो रिजल्ट आप जो चाहेंगे वो मिल जाएंगे। तो सर कंप्लीट नाम क्योंकि चाहिए है सर मुझे। ऑकल्ट के लिए अच्छी अच्छी कुंडली है, अच्छी चार्ट है। ओके, तो ऑकल्ट में काफी आगे जा सकते हैं, होगा सर कोई दिक्कत मुझे नहीं है। प्राची सर एक्चुअली। हाँ, थोड़ा नेम चेंज करना पड़ेगा, वो मैं क्लास में बताऊंगा। ओके ओके सर, नो इशू, थैंक यू सर। हेलो हेलो सर जी, राम प्रकाश बोल रहा हूँ जी। बोलिए राम राम प्रकाश प्रकाश जी। सर जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1969। 20/8/1969। हाँ, 20 अगस्त 1969। जी 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 जी। तो जी करीब 2015 से मेरे पास जॉब नहीं है। एक बार 1 साल के लिए बीच में जॉब लगी, उसके बाद छूट गई, अभी घर ही पर बैठा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना आपका जो टैलेंट है, वो तो जैसे 2/8 का कॉम्बिनेशन बना, जी मतलब आपका जो मूल्यांक 2 है, भाग्यांक 8 है, राइट? जी जी तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ये आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जी आप जी ठीक है। जी जी हाँ, केवल नेम जो है आपका, उसको चेंज करना पड़ेगा और रिजल्ट मिल जाएंगे। जी सर, मैं नेम में सर जी मैंने करीब 2011-12 के आसपास संजय जुमानी जी ने किया था, डबल एम लगाया था राम प्रकाश में। 1 मिनट में चेक कर, संजय जुगानी जी का मेरा एक ही कॉमन वॉल है, मेरा बम्बई में ऑफिस। जी, तो उनके सारे डबल एम क्लाइंट लगाया मेरे था पास उसमें, आते हैं। RA प्रकाश, राम प्रकाश लगाया। बिल्कुल गलत कर दिया जी, कोई रिजल्ट नहीं आने। उन्होंने सर जी किया था और क्या 7 होता नंबर है? पे ले आए आपके वहां से, मैं बता रहा हूँ ना, सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं। 7 नंबर पे ले आए आपके नाम को। अभी जी नाम किससे अच्छा सर था, जी, ये सेल्डियन से या उस पे सर जी, सिलेडियन पाइथागोरन से पे? करते हैं, वो भी सिलेडियन से ही करते हैं नेम चेंज को। तो लेकिन वो सेल्डियन पे क्या तो चीज, सर, वो क्या चीज करते हैं, जो आपके नाम में मिसिंग होते हैं उसको ले आते हैं, जबकि 7 नंबर आना ही नहीं चाहिए। 7 सर जी नंबर, 8 सेल्डियन में, नंबर, 2 नंबर एंड 4 में नंबर कभी नहीं आने चाहिए। सर जी, सेल्डियन में तो 33 पहुंच रहा है सर जी। नहीं 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 नहीं, देखिए, आर का 2, ए का 1, एम का 4, पी का डबल 8। डबल एम है सर जी। इसको बिल्कुल हटा दीजिए, जो उन्होंने चेंज किया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी मैं आपके नेम को बिल्कुल अलग ढंग से लेके आऊंगा और उसके रिजल्ट आप देख लेना। जी सर जी, एक दूसरे और सवाल ये था सर जी, मैं किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ये राम प्रकाश जो है आपका 2 नंबर पे आता है, इसको केवल जी 5 नंबर पे लेके आइए, रिजल्ट देख लीजिए आप खुद। अच्छा अच्छा सर जी। अभी तो जी आपका नाम को 7 नंबर 6 नंबर पे लिया है, जो ऑलरेडी आप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई वो मतलब 6 नहीं है, नंबर केवल पे मैंने चेक किया उधर उधर मिला करके, तो 6 नंबर पे है, वो 33 पे आ रहा है, और 6 पाइथागोरन नंबर पे पे मैंने है। चेक किया तो 47 पे गया था। नहीं नहीं नहीं, 6 नंबर पे है, 6 नंबर ऑलरेडी है आपके, तो मिसिंग जो है उसको, तो 5 नंबर मिसिंग, उसको ले आइए, रिजल्ट मिल जी जाएंगे। जी जी और जी 5 जी नंबर को रिजल्ट आने के लिए ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दें, इसकी वाइब्रेशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। नेम की जी वाइब्रेशन चेंज हुई, नाम को गड़बड़ कर देगा, ठीक जी है? जी 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 इससे दूसरी क्या है आपको चीज, आपके हेल्थ प्रॉब्लम को भी ये 6 नंबर अगर आएगा तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी दे देगा। जी, शुगर शुगर कंटिन्यूअसली है, लेकिन एक्सीड नहीं करती, लेकिन बॉर्डर लाइन पर हमेशा रहती है। हाँ, लेकिन वो है, अगर 5 नंबर पर लाएंगे तो हेल्थ वाइज भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर जो है प्रॉस्पेरिटी के साथ हेल्थ को भी अच्छा रखता है, और जी 5 जी नंबर मिसिंग भी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 3 4 5 7 मिसिंग है। जी, वो मैंने चेक कर लिया। जी जी सर लोकेश पुरोहित बोल रहा हूँ। बोलिए लोकेश जी। 25 मार्च 1985। नाम बोलिए। लोकेश पुरोहित। PUROHIT, राइट, ये लिखते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। 7 6 का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी।
कोई विदेश से संबंध है आपका? नहीं है सर। कोई भी आपका कोई परिवार का कोई कोई रिलेटिव आपका मैं- विदेश में रहता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% है। मेरे परिवार का कोई विदेश नहीं रहता सर, मैं तो गांव में रहता हूँ सर। अच्छा अच्छा, नहीं क्योंकि 8 और 5 का कॉम्बिनेशन ये इंडिकेट करता है कि आपका कोई विदेश से संबंध है। 8-5 8 का। और 5 का कॉम्बिनेशन जो है, क्योंकि आपने 85 बताया, तो 8 हाँ 5 जी, का हाँ जो जी, कॉम्बिनेशन है, अगर आपने ग्रेड अगर कहीं आपने वैदिक सीखा है, तो हाँ जी। 8 5 का जो कॉम्बिनेशन है ये इंडिकेशन है कि आपका कोई विदेश से संबंध है, या तो आपका परिवार का कोई आदमी है या आपका कोई रिलेटिव है। नहीं, विदेश का तो सब मेरा मित्र जरूर है एक, लेकिन मेरा तो परिवार का तो कोई नहीं। ओके। हेलो। देखिए, दिमाग से ज्यादा आप दिल से काम ज्यादा लेते हो, मतलब दिमाग कम लगाते हो, इमोशनल बहुत ज्यादा हो, और वर्किंग बहुत अच्छी है, मतलब मेहनती बहुत हो। हाँ जी। लाइफ में कोई एक बार ऐसा कोई ड्रॉबैक आया, उसके बाद भी थोड़ा सा अच्छा हुआ। इज इट करेक्ट? हाँ, मैं तो सर अभी क्या है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट जॉब का है क्या, या टीचर वीचर का कुछ इस तरीके का? 5 13 16 आप इसको थोड़ा नेम चेंज करिए, पी लोकेश कर दीजिए। है गवर्नमेंट जी। गवर्नमेंट में जाने के काफी अच्छे चांसेस बन जाएंगे। क्या करूँ सर, लोकेश आपके पी? नाम को हाँ, या लोकेश पी या पी लोकेश। अच्छा अच्छा, खाली और पुरोहित? डॉट मत लगाइएगा, डॉट मत लगाइएगा। मतलब नहीं, जैसे डॉट कई तो लोग मेरा पी के आगे डॉट लगा देते हैं ना, या लोकेश हाँ के जी, आगे पी लिखा फिर डॉट लगा दिया। डॉट हाँ अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है? डॉट का मतलब समझा देता हूँ। जैसे हाँ जी, कई लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर जो की डिग्रीज होती है, उसको हाँ जी, डॉक्टर के आगे फिर डॉट लगा देते हैं, तो डिग्री हाइड हो जाती है, ठीक है? हाँ जी। तो लोकेश पी लिखिए, लेकिन या तो सिग्नेचर लोकेश पी करिए, तो हाँ जी। गवर्नमेंट के काफी अच्छे चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि नाम को 1 नंबर पे लाना है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, क्योंकि सूर्य है वो, ठीक है? हाँ, वैसे मैं लोकेश जी लगाता हूँ सर, लोकेश जी, नहीं तो नहीं उससे नहीं ही एक नंबर पे ही नहीं आता है 5। नहीं नहीं नहीं, 5 पर नहीं लाना, आपको 5 ऑलरेडी है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, वैसे एक नंबर आपके बनता है आपके ना। चार्ट में 5 ऑलरेडी है, तो 1 पर हाँ लाना जी, है गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। हाँ क्योंकि जी, हाँ जो जी, कॉम्बिनेशन है वो आपका हाँ कॉम्बिनेशन 7 और 6 है, जिसको 1 पर लाना है। हाँ जी। तो लोकेश पी या पी लोकेश। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। सर, सर। सर मैं मैं धनकोटी मुदलियार बात कर रही हूँ सर। बोलिए। हाँ सर, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ ऑकल्ट साइंसेस में। इंटरेस्ट तो है और कुछ न कुछ अड़चने आती है। मेरा डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ बोलिए। 21/10/1963 है। ओके, और वो बताइए आपका ने, पूरा नाम क्या? नेम सर धनकोटी मुदलियार, DHANAKOTI, फिर MUDALIAR। MADU। हाँ MUDALIAR। हाँ IAR। 3 4 1 5 11 नहीं, देखिए इसमें रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं आपके। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है। हाँ करेक्ट है। आपका जुपिटर कहाँ है लग्न उसमें? सर वो तो नहीं मालूम मुझे। नहीं पता। आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 7:38 PM, 21/10/1963, 7:38 PM।
मैडम धनकोटी में डबल के कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, डबल के। हाँ, केवल डबल के ओके। और कुछ नहीं, सेम। अच्छा, DHANAKKOTI। हाँ बस, रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा सर, फिर बैंक अकाउंट सब जगह यही नाम रख दूं? कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ तो 28 ओनली डेज के डबल कर देने का? टाइम लिखिए। हाँ, और सोशल मीडिया पे डबल के डाल दीजिएगा। अच्छा हाँ, अच्छा, बाकी सोशल मीडिया सब जगह पर भी डबल के? तो नाम चेंज करना होता है क्या अकॉर्डिंग विथ सरनेम भी? नहीं मैडम, ये जरूरी नहीं कि सरनेम भी चेंज करना पड़े। ये नाम की वाइब्रेशन जो है वो चार्ट के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि आपको किस नाम पे लेके आना है। जैसे अभी अपन किसी से बात की थी जो 6 नंबर पे लेके आ गए, और 6 नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और उस व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम है तो 5 नंबर पे लेके आइए। प्रॉस्पेरिटी में दिक्कत आई, 5 नंबर पे लेके आइए। इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, 1 नंबर पे लेके आइए। इस तरह से ये नाम को अलग तरीके से वाइब्रेशन भी चेंज नहीं हो, और नाम को जो चीज चाहिए वो उस चीज पे लेके जाते हैं। तो सिर्फ लेकिन कभी हमारा भी 2 पर नहीं जाते, 8 पर नहीं लेके जाते, 4 पर नहीं लेके जाते। सर, तो सर फिर हमारा ही नंबर चेंज करना है ना हमें, हमारा ही नाम, एक्चुअली सिंगल नेम। आपका नेम बस, और उसमें भी आपका सेकंड नेम लेना है या फर्स्ट नेम को चेंज करना है, या अपन नेम की वाइब्रेशन देख के चेंज करते हैं। और जो रिजल्ट अपन को मिलते हैं, मैं आपको एक ये भी चीज सिखाऊंगा कि आपको मोबाइल नंबर के लास्ट की जो 3 डिजिट हो क्या फायदा देंगे, और फर्स्ट डिजिट 2 डिजिट क्या फायदा देंगे, वो भी आपको सिखाऊंगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। जैसे आप मेरा का देखेंगे, मेरे में 198 है मेरा लास्ट नंबर, तो वो मेरी वाइब्रेशन 9 की है, आई एम कम्प्लीटली 9। तो कैसे लेके आते हैं वो डिपेंड करता है, और वो रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। सर मैंने अभी रिसेंटली नंबर चेंज किया है, 55112। किसके? अच्छा है, लिया तो 9637055112। 963। हाँ घुटने में पेन रहता है आपको मैडम? हाँ सर। घुटने में पेन रहता है आपको? सर अभी मैंने ये 2 महीने लिया है नंबर चेंज किया, लेकिन मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपके घुटने में पेन रहता है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। क्योंकि 63 में घुटने में पेन होने की शिकायत रहती है, जहाँ 63 नंबर आता है। अच्छा, 63 का कॉम्बिनेशन नहीं लेते कभी भी। ओके। उसमें ज्वाइंट्स में पेन की शिकायत चालू हो जाती है। वो सिखाऊंगा मैं आपको कौन से कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देते हैं। सर 5511 तो अच्छा है ना सर, लेकिन हाँ, वो बहुत बढ़िया नंबर है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, श्वेता दिस साइड। हाँ बोलिए मैडम। हाँ जी सर, आई जस्ट वांटेड टू नो कि मेरा नेम के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नेम इज ओके? श्वेता लूथरा, SHWETA and 12 December 1978. 12 दिसंबर 1978। तीन चार का कॉम्बिनेशन मैडम? हाँ जी हाँ जी। फोर तो राहु हो गया, फिर 3 and 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। हाँ जी, 5 इज मिसिंग। या 5 इज मिसिंग, तो 5 पर लेके जाइए, दैट्स ऑल। तो सर कैसे इसका नंबर नेम कैसे उसमें करूं? यस, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हाँ जी, SWETA और SHWTA समथिंग। जी। क्योंकि देखिए मैडम, ये जो आपका जो कॉम्बिनेशन है, ये 3 और 4 का, ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम देता है। तो ये है सर, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। एंड मोरोवर आई वांटेड टू नो सर, इज देयर एनी स्कोप फॉर एस्ट्रोलॉजी इसमें? आप मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग Just a minute. I'll tell you the timings also. 5:27 AM, 12 December 1978. ये तो आपका नेम ही परफेक्ट नहीं है। हाँ जी। इसलिए आपका नेम कब बनता है? आपका 9।
हाँ जी। इसको आपको देखिए, आपको अगर बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है 5 पर लेकर आ जाइए। ठीक है, तो उसको कितने दिन सर रेगुलर उसको एनर्जाइज करना 28 है? days, 28 days, 28 times. सो अच्छा, नेम शुड That's बी all. SHWTA और SWETA? और एस्ट्रोलॉजी का स्कोप है सर मेरे इसमें? इफ इट इज ओके, 9th जुपिटर एंड सन इज लगन विद एक्चुअल में ये 3 और 4 का कॉम्बिनेशन जो है ना, थोड़ी सी सिस्टमेटिक लाइफ कर देता है व्यक्ति की। मतलब एक आपको एक रूटीन लाइफ है बस आपकी। सुबह उठे, जो काम आपको रूटीन से करने पड़ते हैं वो करते हैं, कोई एक अलग से कुछ काम नहीं कर पाते। राइट। इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 3 और 4 का कॉम्बिनेशन में। और एक काम और करिएगा ये 3 और 4 के कॉम्बिनेशन में। मतलब आप मेडिटेशन में जो है वो चंद्रमा को पावरफुल कर लीजिए। इसमें आप नेम पर तो नहीं ला सकते उसको 2 को, लेकिन जैसे मून को पावरफुल किया ना, तो मून के लिए आपका जो सेकंड जो है, मतलब स्वादिष्ठान चक्र है जो है, या फिर 5 नंबर जो है, वो हमारे इसमें कठोपनिषद में जो है वो 9 चक्रास है। 9 चक्रास में क्या होता है कि आपका जो मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र के बीच में 2 चक्रास हैं। एक सूर्य चक्र है जो 4 नंबर पे है, और 5 नंबर का जो चक्रास है वो चंद्र चक्र है। तो उसको एक्टिवेट कर लीजिए। जो अनाहत चक्र के और मणिपुर के जस्ट 2 चक्र हैं बीच में, वो मेरी कबरा की क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। उसमें 5 नंबर को जैसे एक्टिवेट करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, और ऑकल्ट में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर हाइड हो जाता है उसमें। तो आपकी टैलेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, so 9th Jupiter is okay ना for astrology? या जुपिटर इज ओके, बट हाँ, जुपिटर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 को एक्टिवेट, चंद्रमा को एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है सर। वो 5 नंबर का जो मणिपुर के और अनाहत के बीच में 2 चक्र हैं। 4 नंबर का जो चक्र है वो सूर्य चक्र है। 5 नंबर का चक्र जो है वो आपका चंद्र चक्र है, जिसका जो आपका बीज मंत्र है वो क्लीम है। क्लीम। जैसे हर एक का चक्र का एक बीज मंत्र है। जैसे उसका मूलाधार चक्र का लम है, फिर स्वादिष्ठान का वम है, फिर मणिपुर चक्र का रम है। इस तरह से सभी चक्र के बीज मंत्र हैं। 21 मिनट मेडिटेशन करेंगे, क्लीम का एक मन ही मन में जाप करेंगे तो 28 डेज में एक्टिवेट हो जाता है। हाँ जी, तो ये लिखना भी है सर इसको? कोई भी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ मेडिटेशन में 21 मिनट क्लीम का उच्चारण मन ही मन में। ठीक है सर। तो आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे, और हेल्थ प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। हेल्थ प्रॉब्लम भी आपकी गर्दन से ऊपर की प्रॉब्लम है। बिल्कुल है 4 नंबर जो है वो, हाँ, 4 नंबर जो है वो गर्दन से ऊपर का है। ठीक है। आईज में और हेडेक काफी रहती है। हाँ, वही है मैडम। 5 नंबर को एक्टिवेट कर लीजिए, सब चीज रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक। हाँ सर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक मैं बोलूं सर? बोलिए बोलिए। 18/5/1962। हाँ, विशन चंद्र गोयल। क्या लिखते हैं स्पेलिंग पूरी? विशन चंद्र गोयल। VI, वाराणसी वाला VISHAN CHANDRA GOYAL। नौ 5 का कॉम्बिनेशन है। हाँ सर। किचन गलत जगह पर है आपकी? मतलब सर, आपके घर की किचन गलत जगह पर है या उसमें कोई दोष है? वही है, थोड़ा सा वो आगे निकल गई है, थोड़ा साउथ ईस्ट में, ईस्ट का थोड़ा निकल गया, मतलब साउथ का कोना निकल गया थोड़ा। जी जी जी। एक उसमें एक काम करिएगा। हाँ, देखिए, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि उसके इनसाइड में, इनसाइड का बाहर का पोर्शन तो निकला होगा, इनसाइड में एक बिल्कुल राइट एंगल करके एक 14 गेज का एक तांबे का तार लगा दीजिए। अच्छा।
और साउथ ईस्ट में एक एनर्जी पाउडर आता है, इसमें 3 चीजें होती है। ऑक्सैलिक एसिड होता है, एक आपके सिलिका जेल होता है, और एक रॉक सॉल्ट होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन साउथ ईस्ट में रख दीजिए किसी कांच के बाउल में, तो विद इन 14 डेज इट विल बी रेक्टिफाई। 14 दिन के अंदर रेक्टिफाई हो जाती है। सर तो क्या और क्या समस्या है सर, मुझे कोई दिक्कत? जैसे हम आपसे बाकी सीख तो रहे ठीक है, हैं, बाकी तो ठीक है, बाकी तो बहुत बढ़िया है। 3-5 9 के साथ नाम से 3-5 9 आ रहा है। बहुत बढ़िया है। अच्छा 3-5 नाम तक है। केवल साउथ ईस्ट थोड़ा सा पायरेटेड है, बाकी तो ठीक है पूरा मकान। अच्छा ठीक सर। और विशन चंद्र की जगह विशन सी गोयल कर दीजिए तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। विशन सी गोयल। और डॉट मत लगाइए। नहीं डॉट नहीं लगाते सर। हाँ बस। ओके सर। अंकित जी खत्म करें क्लास या और किसी सर को कोई एक डाउट मिनट है? सर, मुझे पूछने का है सर। सर ये धनकोटी का के डबल डालने के लिए बताया, गजट के थ्रू करूं? क्योंकि गवर्नमेंट हाँ। ऑफिस में मैं नौकरी करती हूँ। नहीं, आपको कहीं नहीं करना, सिर्फ 28 दिन 28 बार लिखना है, दैट्स ऑल। अच्छा, धनकोटी सिर्फ 28 बार रोज लिखने का? बस 28 टाइम्स लिखूं, DHANAKKOTI। हाँ 28 डेज 28 टाइम एनहेंस हो ओके जाता सर। है। देखिए सबकॉन्शियस माइंड में आपका जाना चाहिए, तो इसको अगर डेली एनहेंस करते हैं तो अपना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ओके, थैंक यू। और सोशल मीडिया में चेंज करने के लिए बोला नाम आपने? हाँ बस सोशल मीडिया पे डबल के कर दीजिए, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स टू ऑल। तो आज की हमारी डेमो सेशंस यहीं पे समाप्त होती है। जो भी स्टूडेंट इस चीज के इंटरेस्टेड हो तो वो कल दोपहर तक 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मंडे से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं, काफी लेट हो चुका है अब। आई होप आपकी यदि कोई क्वेरीज है तो आप पर्सनली कॉल पे भी हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी जी, थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, सभी को प्रणाम। थैंक यू प्रणाम। प्रणाम सर।